Thanks, sir. Good morning. How are you, students? Fine, sir. Okay. Fine, sir. Fine. Okay. Let us start, students. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just wait for 5 minutes. Firstly, we are revising that we have discussed in last class. Okay. Okay, sir. Okay. In last class, we have discussed normalization. Basically, normalization is the process of breaking up a large table into several small tables so that data redundancy can be reduced. Normalization is basically based on functional dependencies. There are two types of functional dependencies, single value functional dependency and multi-valued functional dependency. Functional dependency means the logical relationship between the non-key attributes of a relation with the key attributes of a relation. Therefore, to determine functional dependency between the attributes of a relation, first of all, we are required to determine key attribute of a relation and non-key attributes of a relation. As you all know, key attribute means the attribute one or combination of more than one attribute is known as key attribute, which is used to identify a record uniquely. Except key attribute, all the attributes are known as non-key attributes. Clear, students? Difference between key attribute and non-key attribute? Yes, sir. Now, there are two types of functional dependency, single valued functional dependency and multi-valued functional dependency. As we have already discussed in last class, in case of single valued functional dependency, one value of each non-key attribute must be dependent on one value of key attribute. This is known as single valued functional dependency between the non-key attribute and key attribute. Single value functional dependency is represented by a single arrow. At the left hand side of single arrow, there will be key attribute, and the right hand side of single arrow, there will be non-key attribute. As we have seen, if we say R dot A arrow R dot B, it means non-key attribute B of relation R is single valued functional dependent on key attribute A of relation R. As you all know, there are three normal forms, first NF, second NF, and third NF, which are based on single valued functional dependency, which we have already discussed in last class. In case of first normal form, there are three conditions. First condition is there are no duplicate row in a table. This can be done by specifying one or more attribute of a table as a primary key. Second one is each cell is single valued, means in a table, every column must be of single valued. As we all know, there can be two type of fields, single valued and multi-valued. If a field can have only one value for a record, that is known as single valued. But if a field can have more than one value for a record, that is known as multi-valued attribute. And third one is entries in a column are of same type. दिस इज ऑब्वियस, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, फील्ड बनाते हैं, तो फील्ड को नेम देते हैं, उसका डेटा टाइप देते हैं. फील्ड को हमने जो डेटा टाइप दिया है, हम उसमें उसी टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं डाल सकते हैं. This is first normal form, which we have discussed in last class. Second one is second normal form. In case of second normal form, every non-key attribute must be fully dependent on key attribute.
means there must be a single valued functional dependency between all the non key attributes and key attribute. Then the table will be in second normal form. Next one is your third normal form. Third normal form is same as hello. हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. In case of third normal form, there must not be transitive functional dependency between the non-key attribute and key attribute. Transitive functional dependency means suppose there are three attributes in a table A, B, and C, and B is dependent on A and C is dependent on B. It means C is indirectly dependent on A. This is known as transitive functional dependency. If there is transitive dependency in our table, then table may be in second normal form, but it cannot be in third normal form. To be a table in third normal form, all the non-key attributes must be directly dependent on key attribute. This is the condition for third normal form. Now, revision is over. We have discussed all the normal forms that we have discussed in last class. Clear, students? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, sir. problem? Hello. Any Yes, problem sir. about this? No, sir. किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके बारे में? आगे स्टार्ट करें आज का? Yes, sir. ओके ओके सर एक बार फिर से बता दीजिए, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया था सर, अभी ज्वाइन किया था। कौन सी नॉर्मल फॉर्म बताऊं बेटा? ये सर बॉयज नॉर्मल फॉर्म। बॉयसी नॉर्मल फॉर्म अभी हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने BCNF स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने केवल लास्ट क्लास का रिवीजन किया है। ओके ओके, नाउ लेट अस लास्ट वाला तो क्लियर था। ओके सर। Okay. Now let us start with BCNF. As I have told you in last class, BCNF is little bit complicated. It is little bit complex. Therefore, first of all, you have to study BCNF. क्या आप स्टडी करके आए हैं BCNF को? मैं पढ़ रहा हूँ सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। कुछ पल्ले कोई नहीं, लेकिन एक बार आपने इसको रीड आउट कर लिया है। यस सर। चलिए, now let us begin with BCNF. This normal form was proposed as a simpler form of third NF, but this is much more strict than third NF. जैसा कि डेफिनेशन से पता चल रहा है, it is a simpler form of third NF. थर्ड NF को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके BCNF को बनाया गया है, and BCNF is much more strict than third NF. BCNF थर्ड NF से ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। कैसे स्ट्रिक्ट होती है पहले समझ लीजिएगा। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बुक्स, द डेफिनेशन ऑफ BCNF इज अ रिलेशन R is said to be in BCNF if X arrow A. यानी कि कोई भी टेबल BCNF में कहलाएगी अगर उसमें कौन सी रिलेशनशिप है? X arrow A, where A in R and A is not in X, then X is a candidate key for R. This is the main about BCNF. अगर ये डेफिनेशन हमें समझ आ गई तो BCNF भी इजीली समझ आ जाएगी। तो मैं इस डेफिनेशन को पहले आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं नोटपैड स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी शेयर कर देता हूँ नोटपैड को। नाउ नोटपैड इज व्यूएबल। यस सर। चलिए, सपोज वी हैव अ रिलेशन R having the attributes A, B, C, D, E, F. Suppose we have a relation R having 6 attributes A, B, C, D, E, F, and this relation has the following functional dependency: X arrow A. तो समझ आ रही है आप लोगों को ये फंक्शनल डिपेंडेंसी? यस सर। A डिपेंडेंट ऑन X। स्टूडेंट समझ आ रहा है? A is single valued functional dependent on X, Yes, sir. Yes, sir. but X attribute is not available in the relation R.
लेकिन रिलेशन आर में तो एक्स एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो हाउ इट कैन बी? बताइए स्टूडेंट्स। ठीक बात है, ये बात जो मैंने बोली सही है, ये समझ रहे हैं इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. हम कह रहे हैं देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स एरो ए बट द रिलेशन आर डज नॉट हैव द एट्रीब्यूट एक्स। क्लियर? Yes, sir. तो व्हाट इज एक्स? बता सकता है कोई भी स्टूडेंट? हियर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Hello. हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो यहाँ पे बताइए, समझ आ रहा है एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X. Here x represents composite attribute. यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Composite attribute. Composite attribute, which can be a plus c, which can be a plus b plus c, which can be b plus c, which can be c plus d, which can be a plus d plus e, any combination of two or more attributes. बताइए ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. It means BCNF is only required for those tables in which we cannot determine single attribute as a key attribute. BCNF की रिक्वायरमेंट केवल उन्हीं टेबल्स के लिए पड़ेगी जिन टेबल में हम सिंगल एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट नहीं बना सकते हैं, जिन टेबल्स में हमें टू और मोर एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन को की एट्रीब्यूट बनाना पड़ता है. Then we are required to work with BCNF. If we are able to determine only single attribute as a key attribute, then table will already be in BCNF. We are not required to place the table in BCNF. बताइए समझ आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. सर वन मोर क्वेश्चन सर, हाँ की एट्रीब्यूट्स का यूज क्या होता है? की एट्रीब्यूट्स का यूज क्या होता है? बेटे क्या नाम है आपका? हेलो हेलो बेटा क्या नाम है आपका? सर, हेमंत. हेमंत. बेटा आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी? लास्ट क्लास सर अटेंड तो किया था, कल का क्लास किया था सर. कल का क्लास अटेंड किया था, तो फिर आपको कल की क्लास समझ ही नहीं आई होगी जब आप की एट्रीब्यूट नहीं जानते हैं. की एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली. कोई भी वो एट्रीब्यूट जिसकी हेल्प से हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. जैसे अब हम क्लास कर रहे हैं और हमारी क्लास में इस समय 33 स्टूडेंट्स हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे? उनके रोल नंबर से. तो स्टूडेंट के लिए की एट्रीब्यूट क्या होगा? रोल नंबर. अगर मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लूं तो क्या वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है एक नाम के 2 स्टूडेंट हो. अगर मैं किसी भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लेता हूं तो हो सकता है सेम डेट ऑफ बर्थ के 2 स्टूडेंट हो. तो वो एट्रीब्यूट जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें उसे की एट्रीब्यूट कहते हैं. चलिए वापस आ जाइए BCNF पे. तो BCNF की रिक्वायरमेंट केवल उन टेबल्स के लिए पड़ती है जिन टेबल में हम किसी सिंगल एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जिन टेबल में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट होता है. बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear. चलिए यस सर. वापस अपनी डेफिनेशन पे चलते हैं. तो हमारी डेफिनेशन थी यहाँ पर, a relation R is said to be in BCNF if X arrow A holds in R. केवल यहाँ तक पढ़ेंगे. एक टेबल R BCNF में कहलाएगी अगर उस टेबल में फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है? X arrow A. X का मतलब है अगर उस टेबल में हम सिंगल एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट नहीं बना पा रहे हैं, अगर उस टेबल में हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बनाया है, तो X रिप्रेजेंट्स कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड A रिप्रेजेंट्स नॉन की एट्रीब्यूट. तो इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चल रहा है X is a non-key attribute which is fully dependent on every candidate key of X. Clear, student? Yes, sir. Yes, sir. Now आगे बढ़ते हैं. And A is not in X. लेकिन A X में नहीं होना चाहिए. जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखिएगा वापस नोटपैड का.
जैसा कि आप नोट पैड में देख रहे हैं, हमारी जो टेबल है वो आर टेबल है, जिसमें एट्रीब्यूट है ABCDEF। अब इसमें हम एक्स जो कंपोजिट की बनाएंगे, मान लीजिए हमने कंपोजिट की बनाया, सपोज B प्लस C को, और हमने कहा A इज सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन B प्लस C। इट मीन्स B प्लस C की एट्रीब्यूट है और A नॉन की एट्रीब्यूट है। तो जो A नॉन की एट्रीब्यूट है वो की एट्रीब्यूट का पार्ट नहीं है। इट मीन्स टेबल इज इन BCNF। बताइए बच्चों, समझ आया कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप ना होके अगर की एट्रीब्यूट है हमारा A प्लस C, देन टेबल इज नॉट इन BCNF, क्योंकि जो A एट्रीब्यूट है आपका वो की एट्रीब्यूट में भी आ रहा है और A एट्रीब्यूट आपका नॉन की एट्रीब्यूट में भी आ रहा है। बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? यस सर। अगर टेबल में ऐसा है तो टेबल हमारी BCNF में नहीं है। टेबल थर्ड NF में हो सकती है लेकिन टेबल BCNF में नहीं हो सकती है। तो BCNF के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? BCNF के लिए पहली कंडीशन रिक्वायर्ड है, हमारी जो की एट्रीब्यूट बनेगा वो कंपोजिट एट्रीब्यूट बनेगा। दूसरी कंडीशन है, कंपोजिट एट्रीब्यूट में हमने जितने भी एट्रीब्यूट्स लिए हैं वो केवल की एट्रीब्यूट की तरफ ही होने चाहिए, वो नॉन की एट्रीब्यूट की तरफ नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो टेबल हमारी BCNF में है, अदरवाइज टेबल हमारी BCNF में नहीं है। बताइए समझ आया कि नहीं बेटा? यस सर। सभी स्टूडेंट्स को यस क्लियर सर। है? चलिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल बताए हैं, पहले मैं आपको सेकंड एग्जांपल समझाता हूँ। देखिएगा सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में इन्होंने कहा है we have a suppose we have a relation by the name student as follows। हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट नेम की टेबल में? स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट एंड प्रोफेसर। स्टूडेंट आईडी मींस स्टूडेंट का रोल नंबर, सब्जेक्ट मींस कौन से सब्जेक्ट की क्लास वो लेते हैं, प्रोफेसर मींस कौन से प्रोफेसर उन्हें क्लास दे रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट है 101, वो जावा सब्जेक्ट पढ़ते हैं और प्रोफेसर का नाम है P.Java। सेम स्टूडेंट 101 C++ भी पढ़ते हैं और प्रोफेसर का नेम है P.CPP। थर्ड स्टूडेंट है 102, जिनका रोल नंबर है सेकंड स्टूडेंट, जो जावा की क्लास ले रहे हैं, लेकिन वो जावा की क्लास जिस प्रोफेसर से ले रहे हैं उनका नेम है P.Java2। थर्ड स्टूडेंट है 103, जो C# की क्लास ले रहे हैं, उनके प्रोफेसर का नेम है P.C#। फोर्थ स्टूडेंट है 104, जो जावा की क्लास ले रहे हैं और उनके प्रोफेसर का नेम है P.Java। टेबल समझ आ गई? यस सर। अब हमें चेक करना है, डिटरमाइन करना है टेबल हमारी BCNF में है या नहीं है। तो किसी भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी टेबल में की एट्रीब्यूट निकालने पड़ते हैं। तो बताइए हमारी इस टेबल में की एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? क्या स्टूडेंट आईडी की एट्रीब्यूट हो सकता है? नो सर। नहीं हो No, सकता, sir. क्योंकि आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं तो एक रोल नंबर 2 बार आ रहा है। क्लियर? यस सर। सेकंड आता है सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट की एट्रीब्यूट हो सकता है? नो No, सर। sir. नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ही सब्जेक्ट एक से ज्यादा बार आ रहा है। अगर जावा की क्लास 3 स्टूडेंट ले रहे हैं तो जावा 3 टाइम्स आ रहा है। नाउ कम टू दी प्रोफेसर। क्या प्रोफेसर की एट्रीब्यूट हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। एक प्रोफेसर अगर 5 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो प्रोफेसर का नेम, उन प्रोफेसर का नेम 5 टाइम्स आएगा, यानी कि प्रोफेसर भी की एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। इट मींस इन दिस टेबल we cannot determine single attribute as a key attribute। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। इस टेबल में हम सिंगल एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब है इस टेबल में BCNF की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। हो सकता है ये टेबल BCNF में ना हो। क्लियर स्टूडेंट्स? यस यस सर। तो अब हम इसमें निकालेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। इस टेबल में कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होगा, इस टेबल में की एट्रीब्यूट क्या होगा? तो जैसा कि आप देखेंगे ID और नोट्स में subject। लिखा है मैंने, व्हाट डू यू थिंक should be the primary key? Well, in the above table, student ID and subject together form the primary key, because the student ID and subject we can find all the columns of the table। तो इस टेबल में की एट्रीब्यूट बनेगा आपका student ID प्लस सब्जेक्ट। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं? यस सर। क्लियर?
अब आप देखेंगे वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज वन प्रोफेसर टीचेस ओनली वन सब्जेक्ट। इस टेबल में जो डेटा है उस डेटा से आप देखेंगे हर प्रोफेसर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई भी ऐसे प्रोफेसर नहीं है जो दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे पी डॉट जावा जावा पढ़ा रहे हैं, पी डॉट सीपीपी सी प्लस प्लस पढ़ा रहे हैं, पी डॉट जावा 2 जावा पढ़ा रहे हैं, पी डॉट सी हैश सी शार्प पढ़ा रहे हैं, पी डॉट जावा जावा पढ़ा रहे हैं। ऐसे कोई प्रोफेसर नहीं है जैसे पी डॉट जावा जावा भी पढ़ा रहे हैं और सी प्लस प्लस भी पढ़ा रहे हैं, या जावा भी पढ़ा रहे हैं और सी शार्प भी पढ़ा रहे हैं। ऐसे कोई प्रोफेसर नहीं है, यानी कि एवरी प्रोफेसर टीचेस ओनली वन सब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। बट Yes, sir. वन सब्जेक्ट मे हैव टू डिफरेंट प्रोफेसर। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। जैसे जावा के लिए हमारे पास दो प्रोफेसर हैं, पी डॉट जावा एंड पी डॉट जावा 2। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। इट मीन्स सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर। इसका मतलब सब्जेक्ट किस पे डिपेंड हो गया? प्रोफेसर पे डिपेंड हो गया। Yes, Clear? sir. तो यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई, सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर। मैं आपको दिखाता हूं एनोटेशन से। एनोटेशन से देखिएगा, ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने बनाया है हियर, एज यू आर सीइंग सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. और ये थी हमारा की एट्रीब्यूट स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा की एट्रीब्यूट में भी आ रहा है और सब्जेक्ट हमारा नॉन की एट्रीब्यूट में भी आ रहा है। इट मींस दिस टेबल इज नॉट इन BCNF। BCNF। बताइए समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. क्लियर? देखते यस हैं, सर। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखिए, दिस टेबल सेटिस्फाइज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि सारे एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं। की एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर पा रहे हैं हम, तो कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं होगी। सभी फील्ड का डेटा टाइप अलग अलग है, तो उनमें उस टाइप की वैल्यू जाएगी। दिस टेबल इज ऑल्सो इन सेकंड NF, दिस टेबल इज ऑल्सो इन थर्ड NF, क्योंकि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। बट दिस टेबल इज नॉट इन BCNF, लेकिन ये टेबल BCNF में नहीं है, क्योंकि इस टेबल में जो एक एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट, वो की एट्रीब्यूट का पार्ट भी है और वो नॉन की एट्रीब्यूट में भी आ रहा है। और अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हमारी टेबल में कोई एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट दोनों का पार्ट बनता है, तो टेबल कैन नॉट बी इन BCNF। बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? यस सर। क्लियर? यही इन्होंने यहाँ समझाया है, व्हाई दिस टेबल इज नॉट इन BCNF। In the table above, student ID and subject form primary key attribute, which means subject is a part of key attribute. But there is one more dependency, that is subject is dependent on professor, and while subject is a primary attribute, professor is a non-primary attribute, which is not allowed by BCNF. तो इसको BCNF में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको दो टेबल में ब्रेकअप करना पड़ेगा। पहली टेबल हम बनाएंगे स्टूडेंट, जिसमें आ गया स्टूडेंट ID एंड प्रोफेसर, जिससे पता चलता है कौन से प्रोफेसर किस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अब इसमें की एट्रीब्यूट किसको बनाएंगे? अब इसमें की एट्रीब्यूट बनाएंगे स्टूडेंट ID प्लस प्रोफेसर को। और नेक्स्ट टेबल बनेगी प्रोफेसर, जिसमें आ जाएगा प्रोफेसर और सब्जेक्ट, कौन से प्रोफेसर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। इसमें की एट्रीब्यूट बनाएंगे प्रोफेसर प्लस सब्जेक्ट को। दिस इज BCNF। बताइए बच्चों, समझ आया कि नहीं? यस सर। दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, टेबल को BCNF की रिक्वायरमेंट तभी पड़ेगी अगर हमारी टेबल में सिंगल एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट नहीं बन पाता है। अगर आपने अपनी टेबल में सिंगल एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बना लिया, तो आपको BCNF की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारी टेबल में की एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि हमें कंपोजिट की को की एट्रीब्यूट बनाना पड़ता है, तो हो सकता है हमारी टेबल BCNF में ना हो। फिर कैसे चेक कराएंगे टेबल BCNF में है कि नहीं है? हम चेक करेंगे हमारी टेबल कंपोजिट की से जो की एट्रीब्यूट बना है, उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो केवल की एट्रीब्यूट में होने चाहिए, वो नॉन की एट्रीब्यूट में नहीं होने चाहिए। मींस वो केवल एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आने चाहिए, एरो के राइट हैंड साइड में नहीं आने चाहिए। अगर उनमें से कोई एट्रीब्यूट एरो के राइट हैंड साइड पे भी आ रहा है, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट में भी आ रहा है, तो टेबल BCNF में नहीं है। फिर हमें टेबल को BCNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
टेबल को BCNF में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो की एट्रीब्यूट्स, जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स, केवल नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, की एट्रीब्यूट में नहीं आ रहे हैं, उन सभी नॉन की एट्रीब्यूट्स को कंपोजिट की के साथ एक टेबल में डाल देंगे, बाकी को दूसरी टेबल में डाल देंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा प्रोफेसर और स्टूडेंट आईडी को हमने एक टेबल में डाल दिया और सब्जेक्ट और प्रोफेसर को दूसरी टेबल में डाल दिया। नाउ दीज टू टेबल्स आर इन BCNF। क्लियर स्टूडेंट्स? सर एक बार दोबारा बता यस देंगे। सर। BCN दोबारा समझ लीजिएगा, BCNF के लिए पहली कंडीशन है हमारी टेबल में कंपोजिट की होनी चाहिए। अगर कंपोजिट की नहीं है, सिंगल एट्रीब्यूट ही की एट्रीब्यूट है, तो हमें BCNF की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. नाउ सेकंड पॉइंट, अगर हमारी टेबल में कंपोजिट की को की एट्रीब्यूट बनाना पड़ता है, तो कंपोजिट की होती है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। तो वो जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, वो मल्टीपल जिनके कॉम्बिनेशन को हमने कंपोजिट की बनाया है, वो केवल की एट्रीब्यूट का ही पार्ट होने चाहिए, वो नॉन की एट्रीब्यूट में नहीं होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आपने इस एग्जांपल में देखा था, इस एग्जांपल में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट थे, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट एंड प्रोफेसर। इसमें हमने की एट्रीब्यूट बनाया स्टूडेंट आईडी प्लस सब्जेक्ट, यानी कि कंपोजिट की एट्रीब्यूट बनाया है। अब स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट हमारे की एट्रीब्यूट में है, तो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट हमारे नॉन की एट्रीब्यूट में नहीं होने चाहिए। लेकिन हमने इस रिलेशनशिप से देखा सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर, तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर। तो जैसा कि आप इन दो डायग्राम से, दो एग्जांपल से देख रहे हैं, स्टूडेंट आईडी प्लस सब्जेक्ट की एट्रीब्यूट है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा की एट्रीब्यूट में भी आ रहा है, एंड सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर, इट मीन सब्जेक्ट हमारा नॉन की एट्रीब्यूट में भी आ रहा है। इसका मतलब है सब्जेक्ट की एट्रीब्यूट का भी पार्ट है और सब्जेक्ट नॉन की एट्रीब्यूट भी है। इसका मतलब है ये टेबल BCNF में नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको BCNF में कन्वर्ट करके जिन जिन के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनको एक टेबल में ले लेंगे। जैसे प्रोफेसर इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी, कौन से प्रोफेसर किस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो एक टेबल हमने बना ली स्टूडेंट आईडी एंड प्रोफेसर। इसमें की एट्रीब्यूट बनाएंगे स्टूडेंट आईडी प्लस प्रोफेसर को। नेक्स्ट टेबल प्रोफेसर एंड सब्जेक्ट, जिसमें की एट्रीब्यूट बनाएंगे प्रोफेसर प्लस सब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको खुद से करना है। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के दी हुई है, जिस टेबल में 4 फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट एंड ग्रेड। अब आपको देखना है ये टेबल BCNF में है या नहीं है। अगर टेबल BCNF में है, वेल एंड गुड। अगर टेबल BCNF में नहीं है तो क्यों नहीं है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेबल इन BCNF। दिस इज योर असाइनमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। Okay. ओके सर। Okay. Now come to the 4th NF and 5th NF. 4th NF and 5th NF are basically based on multi-valued functional dependency. Therefore, first of all, we must be knowing what do you mean by multi-valued functional dependency. As we have already discussed, functional dependency means relationship between the non-key attribute and key attributes. Now there can be 2 type of non-key attributes. Non-key attributes can be single valued attribute and non-key attributes can be multi-valued attribute. If an attribute is single valued, then there will be single valued functional dependency between the non-key attribute and key attribute. But if there is a multi-valued non-key attribute, then there will be multi-valued functional dependency between the non-key attribute and key attribute. What do you mean by multi-valued functional dependency? Multi-valued functional dependency means if 2 or more values of a non-key attribute is dependent on one value of key attribute, then there is a multi-valued functional dependency between the non-key attribute and key attribute of a table. अगर किसी टेबल के एक एट्रीब्यूट, एक नॉन की एट्रीब्यूट की एक से ज्यादा वैल्यू की एट्रीब्यूट की एक वैल्यू पे डिपेंडेंट है, then there is a multi-valued functional dependency between the non-key attribute and key attribute. This is represented by double arrow. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिखाता हूं मैं आपको। This here, as you are seeing, R dot A double arrow R dot B. It means multi-valued non-key attribute B is multi-valued functionally dependent on key attribute of A.
यानी कि हमारे पास जो आर रिलेशन है, उस आर रिलेशन में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? नो सर, Yes, sir. आ गया, आ गया? दे रहा सर। ओके, तो Yes, ये sir. ये जो मैंने आपको सर्कल बनाया है, इसमें आप देख रहे हैं जो नॉन की एट्रीब्यूट है बी, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, और उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की एक से ज्यादा वैल्यू की एट्रीब्यूट ए पे डिपेंडेंट है। दिस इज नोन एज मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो हम मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी पहले हम सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हमें मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है तभी हम फोर्थ और फिफ्थ एनएफ को समझ सकते हैं, बिकॉज फोर्थ एंड फिफ्थ एनएफ आर बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ लेट अस मूव टू दी फोर्थ एनएफ। As you are seeing, this is a generalization of BCNF which include multi-valued functional dependency. अगर आपकी टेबल में एक या एक से ज्यादा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं तो आपको फोर्थ एनएफ की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, लेकिन अगर आपकी टेबल में कोई भी एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड नहीं है तो आपको मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। क्या कहा है इन्होंने? A relation R is in fourth NF if whenever X double arrow Y is non-trivial MVD. MVD stands for multi-valued functional dependency. इन्होंने कहा है अगर आपकी टेबल में कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट की एक से ज्यादा वैल्यू की एट्रीब्यूट की एक वैल्यू पे डिपेंडेंट है तो आपकी टेबल में मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और अगर आपकी टेबल में मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो आपकी टेबल फोर्थ एनएफ में हो सकती है। लेकिन अगर आपकी टेबल में ऐसे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, मींस सपोज योर टेबल हैव 2 और मोर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, अगर आपकी टेबल में 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड हैं तो आपकी टेबल फोर्थ एनएफ में नहीं होगी। उस केस में आपको अपनी टेबल को फोर्थ एनएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं? In other words, we can say that if a relation has more than one multi-valued attribute, then we should decompose the relation by placing each multi-valued attribute with the key attribute in a separate table. Means टेबल को फोर्थ एनएफ में होने के लिए आपकी टेबल में एक ही मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर आपकी टेबल में एक से ज्यादा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं तो आपको अपने टेबल को फोर्थ एनएफ में कन्वर्ट करने के लिए हर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट के साथ सेपरेट टेबल में डाल देंगे। बताइए समझ आया कि नहीं? यस सर। देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज वी हैव अ टेबल बाय द नेम फैकल्टी। फैकल्टी नेम से हमारे पास एक टेबल है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, फैकल्टी आईडी, सब्जेक्ट एंड कमेटी। टेबल का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। फैकल्टी आईडी मींस फैकल्टी की आईडी, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट वो टीच करते हैं, कमेटी कॉलेज में जो कमेटीज हैं उनमें से वो किस किस कमेटी के मेंबर हैं, किस किस कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फैकल्टी जिनकी आईडी है F001, वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जावा, वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं DBMS। सपोज वो प्लेसमेंट कमेटी में भी हैं, सपोज वो स्पोर्ट्स कमेटी में भी हैं, सपोज वो एग्जाम कमेटी में भी हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस तो सर। सब्जेक्ट इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट? मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यू। क्योंकि एक फैकल्टी के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। कमेटी इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट? सर मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यूड। और इस टेबल में की एट्रीब्यूट किसको बनाएंगे? क्या सर? व्हाट विल बी द की एट्रीब्यूट इन दिस टेबल? सर फैकल्टी आईडी। फैकल्टी आईडी। तो फैकल्टी आईडी इस टेबल में की एट्रीब्यूट है और सब्जेक्ट और कमेटी नॉन की एट्रीब्यूट है। अब सब्जेक्ट और कमेटी अगर नॉन की एट्रीब्यूट है तो हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट और कमेटी की फैकल्टी आईडी के साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिखाता हूं मैं आपको सर्कल करके।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट इज मल्टी वैल्यूड फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन फैकल्टी आईडी, कमेटी इज मल्टी वैल्यूड फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन फैकल्टी आईडी। तो हमारी टेबल में सभी नॉन की एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट के साथ मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं है? सर है। है। सर है। तो टेबल 4th NF में है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक से एक ही ज्यादा है टेबल में क्योंकि एक से ज्यादा ज्यादा मल्टी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अगर इस टेबल में एक ही मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता तो ये टेबल 4th NF में होती, लेकिन हमारी इस टेबल में जैसा कि आप देख रहे हैं एक से ज्यादा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है हमारी टेबल 4th NF में नहीं है। तो इस टेबल को 4th NF में कन्वर्ट करने के लिए हम हर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट के साथ सेपरेट टेबल में प्लेस कर देंगे। इट मींस अगर हम इस टेबल को 2 टेबल में डिकम्पोज कर दें, एक टेबल हमने बनाई फैकल्टी अंडरस्कोर सब्जेक्ट जिसमें डाल दिया फैकल्टी आईडी कॉमा सब्जेक्ट, दूसरी टेबल हमने बनाई फैकल्टी अंडरस्कोर कॉम जिसमें हमने डाल दिया FID कॉमा कमेटी। तो अब ये टेबल हमारी दोनों किस में आ गई? 4th NF में। क्लियर स्टूडेंट, समझ आ गया? यस यस सर। सर। अब बता सकते हैं जो हमने फर्स्ट टेबल बनाई है फैकल्टी अंडरस्कोर सब्जेक्ट, इसमें की एट्रीब्यूट किसको बनाएंगे? सर फैकल्टी आईडी को। फैकल्टी आईडी को। सर अगर दोनों हमने को। फैकल्टी आईडी को की एट्रीब्यूट बना दिया तो एक फैकल्टी आईडी एक ही बार आएगा, इसका मतलब है क्या एक फैकल्टी एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? सर कंपोजिट की बनाएंगे। कंपोजिट दोनों की को बनाएंगे। बनाएंगे, बिल्कुल कंपोजिट की बनाएंगे। किस किस को? FID प्लस FID सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को। क्लियर। ऐसे ही सेकंड टेबल में कंपोजिट की बनाएंगे FID प्लस कमेटी। कमेटी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। Yes, यस सर। दिस इज 4th NF। क्लियर? ओके सर। नाउ Okay, कम टू दी sir. 5th NF। सर आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। आवाज ब्रेक हो रही है? यस सर। थैंक यू सर। मेरी तरफ तो सही आ रही है, देखो क्लियर आ रही है आप लोगों की तो आवाज। सही आ रही है यहाँ पे। सही आ रही है सर, क्लियर आ रही है। देखो शायद अमन मेरे घर तुम्हारे पे भी ब्रेक हो रही है। नेट स्पीड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। फोन करा दो। वेट। करें स्टार्ट? यस सर। यस सर। चलिए, 5th NF is also based on multi-valued functional dependency same as 4th NF. Clear students? तो 4th NF समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। तो बता सकते हैं 4th NF की रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ेगी? मल्टी वैल्यू के लिए। 4th NF की रिक्वायरमेंट के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है हमारी टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, और दूसरी कंडीशन है हमारी टेबल में दो या दो से ज्यादा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं। तो हमें 4th NF की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हमारी टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ 4th NF। अगर हमारी टेबल में केवल एक ही एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है then there is no requirement of 4th NF. Table will automatically be in 4th NF. But if there are two or more multi-valued attribute, then we are required to decompose the table to place them in 4th NF. Clear students? यस सर। यस सर। Now for 5th NF the condition is if in our table all the attributes are multi-valued attributes and all the attributes are the part of key attributes, then we are required to work with 5th NF. अगर हमारी टेबल में सारे एट्रीब्यूट्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं और वो की एट्रीब्यूट का पार्ट भी बन रहे हैं, देन टेबल इज नॉट इन 5th NF. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। नो सर। यस। अभी एक एग्जांपल एक लेते हैं बार तो बताओ। क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, पहले एग्जांपल समझिएगा। सपोज देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक का जो हमने डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस में एक टेबल है सप्लायर विच कंसिस्ट ऑफ सप्लायर डिटेल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? हियर इज अ टेबल, मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल से। There is a table by the name supplier जिसमें है सप्लायर कोड,